So, hey everyone, without any introduction, let's start with the electrolysis chapter, and we are going to cover all the important concepts of electrolysis in this one video. So, let's go ahead. तो पहले तो electrolysis में you need to know all the basics, that is anode, cathode, then you have the cations, anions, then you have the electrolyte cell, then weak electrolyte, strong electrolyte. बस उसमें क्या है, मतलब weak electrolyte मतलब weak bases, weak salt and weak acids, and strong electrolyte मतलब strong salts, strong bases and strong acids. That's all you need to know in that stuff. फिर बाद में आता है your anode and cathode, वो मैं बता रही हूँ. Then electrolytic cell, that you need to know, but which is very basic. It's something a non-conducting vessel which can withstand some high temperatures. So yes, and electrolysis में first of all electrolysis का मतलब क्या है? This one definition is what you need to see. Electrolysis का definition: electrolysis is the decomposition of a chemical compound that is an electrolyte in the aqueous or fused, that is molten state, by passage of a direct electric current resulting in the discharge of ions as neutral atoms at the respective electrodes. तो यहाँ पे all these words whichever I am saying, these are the keywords. So decomposition मतलब breakdown sort of, ठीक है. इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड. ऑलवेज हाँ, रिमेंबर कि इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हो रहा है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन विद सम एलिमेंट और सम एटम और सम सम सेम थिंग वाला. सो इट नीड्स द इलेक्ट्रोलाइसिस नीड्स टू बी डन विद द हेल्प ऑफ अ कंपाउंड. ओके, इलेक्ट्रोलाइसिस हम कंपाउंड के साथ ही परफॉर्म कर सकते हैं, नथिंग एल्स अदर देन दैट. सो केमिकल कंपाउंड वी नीड. ओके, सो दैट इज गोइंग टू एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इन द एक्विस और फ्यूज स्टेट. अभी ये भी कैसे चाहिए? यू नीड टू कीप इट इन एन एक्विस स्टेट और यू नीड टू हैव इट इन द फ्यूज्ड और मॉल्टन स्टेट. फ्यूज्ड एंड मॉल्टन इज द सेम थिंग, दैट इज द मेल्टेड सॉर्ट ऑफ स्टेट ऑफ द chemical compound. Okay, so it should be an aqueous state or in the fused or molten state by the passage of a direct electric current. How you break down this is by the direct passage of an electric current. मतलब यहाँ पे we are using a passage of direct electric current, मतलब DC current, ठीक है. DC current मतलब we are not going to use the alternate current because alternate current has alternating frequency and alternating polarities, so it is not going to help us at all. So yes, because we are going to specifically deal with positive and negatives, so here if it will be alternating, it will be not of any use. So they are not going to ask you about this, but this is to be clear that always a direct current is used. Then we have resulting in the discharge of ions. अगला part क्या है? Resulting in the discharge of ions. मतलब क्या? Ions they are going to discharge. Okay, ions we are going to get by the decomposition of the compound, chemical compound. तो ions कौन से होने वाले? Cations and anions. लेकिन how they are going to be discharged is discharged. Remember this word. Discharge कैसे होगे वो? They are going to be discharged as neutral atoms. They are going to be discharged as neutral atoms. I repeated it again. Okay, so they are going to be discharged as neutral atoms. So this is not compulsory कि always, if we know यहाँ पे migration होता है, मतलब cations जाएगा कैथोड के पास, anions जाएगा एनोड के पास, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव will go to positive. But that is not the case here because इसको क्या बोलते हैं, लेकिन जाने को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं. आई क्लियर यू दिस. जाने को क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं. एंड वहाँ पे जाके डिस्चार्ज होने अलग है, डिस्चार्ज होना अलग है, वहाँ पे जाके माइग्रेट होना अलग है वहाँ पे, क्योंकि एंड इन सम केसेस इट इज़ देयर लाइक it is not compulsory that all the things which will migrate over there are going to get discharged, ठीक है. it is not compulsory. so whatever discharge होगा, लेकिन इतना तो compulsory है कि जो, लेकिन हमें देखो जो भी डिस्चार्ज होगा वो न्यूट्रल एटम का ही होगा, ठीक है. डिस्चार्ज होगा कैसा हुआ तो न्यूट्रल एटम का ही होगा, नहीं तो माइग्रेट होगा लेकिन कंपलसरी नहीं है वहाँ पे जाके डिस्चार्ज होगा, ठीक है. माइग्रेट तो होगा रे, सब कुछ जाएगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के बाद जाएगा, लेकिन वहाँ पे रुकेगा, वहाँ पे डिस्चार्ज होगा. दैट इज़ नॉट कंपलसरी, ठीक है. अगर हुआ डिस्चार्ज तो ऑफकोर्स इट इज़ गोइंग टू बी एज अ न्यूट्रल एटम. दिस यू नीड टू रिमेंबर एंड नथिंग एल्स. एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, दिस इज कॉमन सेंस. Cations will go to cathode and anions will go to anode. That's all. C के पास जाएगा, A के पास जाएगा. Cations are, you remember them with a cat. Cat is very good. Cat is positive. So yes, good people are positive. ऐसा कुछ तो करो. तो yes, cations are positive. They'll go to, कहाँ पे जाएगा? C के पास. C कौन है? कैथोड. अभी बच्चा कुछ कौन है? इलेक्ट्रोड. कैथोड ना, C से. तो यस, सी के पास जाएगा, मतलब कैथोड के पास जाएगा. एंड दिस कैथोड ऑफ कोर्स विल बी नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा? नेगेटिव के पास. एंड अपोजिट विद द एनोड, ठीक है, इजी. सो दैट्स ऑल. तो हाँ, ये हो गया डेफिनेशन, ठीक है. नाउ लेट्स कम बैक
बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये वगैरह तो आपको आराम से पता होगा. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इलेक्ट्रोलाइट में, दैट इज पार्टिकल्स कौन से उसमें. इलेक्ट्रोलाइट्स में होते हैं आयॉन्स एंड मॉलिक्यूल्स ओनली, या फिर आयॉन्स ओनली. मतलब इट इज़ कंपल्सरी दैट आयॉन्स चाहिए ही चाहिए. इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि, मतलब कंपल्सरी क्या, होने ही नहीं चाहिए, मॉलिक्यूल्स होने ही नहीं चाहिए. देयर शुड बी ओनली आयॉन्स, ओनली एंड ओनली आयॉन्स. या फिर अगर हुए मॉलिक्यूल्स तो मॉलिक्यूल्स के साथ भी आयॉन्स होने चाहिए. ख़त्म, ईजी. फिर है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर हुए तो थोड़े से आयॉन्स हो गए, लेकिन आयॉन्स लिखना वहाँ पे एग्जाम में अलाउड नहीं है. यू ओनली हैव टू राइट मॉलिक्यूल्स. तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है वो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है. तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में देयर विल बी ओनली मॉलिक्यूल्स एज द पार्टिकल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. सो वहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ मॉलिक्यूल्स अगेन, बिकॉज सी वहाँ पे ब्रेक डाउन होने ही नहीं वाला, अभी वो समझाने का टाइम नहीं है. तो वहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं होने वाला, तो देयर विल बी ओनली द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट. ठीक है. एंड येस, तो हाँ यहाँ पे एक चीज़ है, और दैट इज प्योर एंड डिस्टिल्ड वाटर इज ऑल्सो अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. यू नीड टू रिमेंबर दिस. ऐसा नहीं है कि एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं हम, उसमें पानी डालेंगे, डाइल्यूट करते हैं हम किसी भी चीज़ को, एंड देन वी आर गोइंग टू यूज इट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो वाटर भी एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ऐसा नहीं है. वाटर जो है, कौन सा वाला वाटर, डिस्टिल्ड वाटर या फिर प्योर वाटर जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर और प्योर वाटर इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, इट इज़ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. क्या होता है डिस्टिल्ड और प्योर वाटर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है. देन वी हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, दे ऑलमोस्ट आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड, और यहाँ पे दे आर पार्शियली डिसोसिएटेड. यू कैन नॉट राइट थोड़े से डिसोसिएट होते हैं, नो, यू हैव टू राइट पार्शियली डिसोसिएटेड, और यहाँ पे यू हैव टू राइट कंप्लीटली डिसोसिएटेड. ठीक है. एंड पार्टिकल्स क्या होता है यहाँ पे, ओनली आयॉन्स. स्ट्रॉन्ग में क्या हो गया, ओनली आयॉन्स. वीक में क्या हो गया, आयॉन्स एंड मॉलिक्यूल्स. कौन से मॉलिक्यूल्स, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स. ठीक है. फिर वहाँ पे वही कॉमन सेम थिंग कि वीक वाले, वीक में वीक जो एसिड और बेसिस या सॉल्ट्स होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के जैसे एक्ट करेंगे, स्ट्रॉन्ग वाले स्ट्रॉन्ग जैसे एक्ट करेंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. अभी हमारे पास है, देखो एनोड. अभी वापस आते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी स्टार्ट हो रहे हैं. ऑल द बेसिक्स आर डन. ठीक है. तो एनोड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड. एनोड इज द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. एनोड इज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड. एनोड इज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड. आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, अभी दिमाग में फिट हो जाने चाहिए. बिकॉज एन ऑक्स, ठीक है, एन ऑक्स, एन मीन्स एनोड, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडाइजिंग. सो ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड कौन होता है, एनोड. बचा कुछ सेंट्रल रेलवे, अभी याद रखो सेंट्रल रेलवे CR से लिखते हैं ना, यस. सो कैथोड इज रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड. कैथोड इज रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड, CR. यू नो दिस CR. सो CR इज कैथोड, C इज कैथोड एंड R इज रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है अभी, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड मतलब क्या, कि मतलब इधर आके मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं. इधर आके मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड. मतलब यहाँ पे आके मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं. वहाँ पे मतलब ऐसा समझो कि एनोड है ना, वहाँ पे मेटल्स को बुलाता है, कैटायंस को बुलाता है, और उनसे एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाता है. ठीक है. सो दैट इज ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड. ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन अच्छा होता है, ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव से क्या याद रखोगे कि एनोड पॉजिटिव होता है. ठीक है. फिर इट इज़ ऑलवेज अच्छा, तो वो डोनेट करता है. तो डोनेट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स भाई. तो ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो गए या फिर लूज हो जाएंगे. तो यहाँ पे क्या है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटल्स, कैटायंस, एनायंस, एटम्स. ठीक है. तो यहाँ पे इधर आके क्या होता है, मेटल्स जो है, मेटल्स के जो कैटायंस है, दे आर गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. वेयर, एट द एनोड. एट द कैथोड क्या होगा, इधर आके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे वो. ठीक है. जो नॉन मेटल्स के जो आयन्स हो गए, दे आर गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, दे आर गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो ये क्या है, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड. कौन, कैथोड. ठीक है. CR कैथोड, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड. खत्म. तो अभी है पहला इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट इज ऑफ मोल्टन PbR2. मोल्टन PbR2. मोल्टन PbR2 में क्या है, एट दी कैथोड. अभी कैथोड का रिएक्शन देखते हैं. पहले PbR2 का फॉर्मूला कैसे बना, Pb+2 होता है. Pb की वैलेंसी है +2, Br की है -1. सो इट इज गोइंग टू बी Pb+2, Br -2. ये दो चीज़ें मिलेंगी इलेक्ट्रोलाइट में, ऑफ कोर्स. और इनको हमने लिया है मोल्टन स्टेट में. वाई, बिकॉज PbR2 कैन नॉट बी यूज टू परफॉर्म इलेक्ट्रोलाइसिस इन इट्स एक्विस स्टेट. तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड वी यूज द PbR2 इन द मोल्टन स्टेट. ठीक है. सो PbR2 के जो इलेक्ट्रोलाइट होगा इस पूरी रिएक्शन में, तो उसमें क्या हो गया, पार्टिकल्स, इट विल बी the ions, the cations and the anions of Pb+2 and Br-2. So Br-2 is an anion, cation is the Pb+2. ठीक है. So cations are positive, they'll migrate towards the cathode, that is negative,
anions are negative, that is for example here in this case is Br minus, it is going to go to anode, it is going to migrate towards the anode. ठीक है, एनोड इज पॉजिटिव. तो यहाँ पे अभी याद कैसे रखोगे? ऑयल रिग, ऑयल रिग इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. ऑयल रिग क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन. ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन. ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं? डोनेट होता है इलेक्ट्रॉन्स या फिर लूज कर देता है. ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन. इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर वो कैट और वो दानशूर होता है एंड माई अलॉट स्टफ जो मैंने बताया स्टोरी, तो इफ यू डोंट वांट टू रिमेंबर दिस, यू जस्ट रिमेंबर दिस कि ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बात किसकी चल रही है? इलेक्ट्रॉन्स की. ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन. अभी कैथोड पे रिएक्शन आती है एग्जाम में, तो राइट द रिएक्शन एट कैथोड. कैथोड पे क्या हुआ? सो यहाँ पे कैथोड पे ध्यान रखना है. C फॉर सेंट्रल, R फॉर रेलवे, CR. कैथोड दिखा वैसे ही रेलवे याद आना चाहिए भाई. रेलवे मतलब R, CR मतलब क्या? कैथोड पे रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा. रिडक्शन मतलब क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा. मतलब यहाँ पे जो कैथोड पे आएंगे, कौन आएंगे? कैटायॉन्स आएंगे. कैटायॉन्स कौन है? पॉजिटिव वाले, तो Pb+2 आएंगे. सो प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, तो +2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वैलेंसी क्या है? +2, तो यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन्स हम दे देंगे उसको. और क्या बनेगा? Pb. Pb क्या होगा? इट इज़ गोइंग टू बी अ न्यूट्रल. इट इज़ अ Pb क्या है फिर? उसके ऊपर कुछ नहीं है ना, उसके ऊपर खोपड़ी पे कुछ है क्या? नहीं है, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ न्यूट्रल एटम नाउ. ठीक है, कैथोड पे आने के बाद इट इज गोइंग टू टर्न इनटू अ न्यूट्रल एटम. सो Pb+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए एंड इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ न्यूट्रल एटम, दैट इज अ Pb. ठीक है, अभी एनोड पे क्या होगा? एट एनोड, एनोड देखा, ऑक्स याद आना चाहिए. एनोड को देखने के बाद ऑक्स याद आना चाहिए. सो एन ऑक्स मतलब एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा. एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा मीन्स क्या होगा? यहाँ पे Br माइनस है, इट इज़ गोइंग टू अगेन लूज इलेक्ट्रॉन्स. Br ने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, यू आर गोइंग टू गेट Br. ओके, Br एज इट इज़. यहाँ पे अभी एक ऐसा Br नहीं होगा, एक ही Br नहीं होगा ना पूरे सोल्यूशन में. एक ही Br का आइटम थोड़ी होगा, एक ही Br का आयन थोड़ी होगा, नहीं. देयर बी a lot of Br ions और Pb plus ions. So क्या होगा? Br plus Br, Br2 बन जाएगा एंड Br का ब्रोमीन गैस बन जाएगा एंड इट इज़ गोइंग टू गेट evolved. ठीक है, एट दी एनोड. ठीक है, सो इसकी जो ऑब्जर्वेशन है, इट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस. ये कैथोड पे सिल्वरी ग्रे मेटल बना है. कैथोड पे सिल्वरी ग्रे मेटल बना है. इट इज़ Pb, दैट इज इट इज़ लेड. ठीक है, सिल्वरी ग्रे मेटल इज फॉर्म्ड एट दी कैथोड एंड एनोड पे वी हैव the dark reddish brown fumes of Br2 or Br, that is bromine. We have the dark reddish brown fumes that is of bromine. ठीक है, easy. Dark reddish brown fumes and silvery gray metal. Silvery gray metal, which is the silvery gray metal here in this case, it is the lead and the dark reddish brown fumes are of bromine. So this is how you have to write the observation. Then we have the electrodes. अभी electrode कौन सी यूज़ किया हमने? यहाँ पे इलेक्ट्रोड की बात ही नहीं की. यहाँ पे वी हैव यूज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. इनर्ट यहाँ पे कौन सा है? ग्राफाइट यूज़ करते हैं इनर्ट के, इसमें ग्राफाइट भी यूज़. ठीक है, इनर्ट के केस में ग्राफाइट भी यूज़. क्यों ग्राफाइट यूज़ किया? प्लैटिनम भी यूज़ कर सकते थे ना? नहीं, क्योंकि इट इज़ अनअफेक्टेड बाय Br2 वेपर्स. Br2 के जो वेपर्स हो रहे हैं ना इवॉल्व, तो ये जो गैशियस वेपर्स है, दीज आर वेरी रिएक्टिव. सो वो किसके साथ भी रिएक्ट कर देते हैं, चाहे वो इनर्ट हो या कुछ भी हो. तो इसलिए ग्राफाइट जो है, ग्राफाइट उनके साथ रिएक्ट नहीं करता. एंड आफ्टर ऑल इट इज़ एन इनर्ट इलेक्ट्रोड, सो इट इज़ गोइंग टू बी अनअफेक्टेड बाय Br2 प्लस गैस और ब्रोमीन वेपर्स. ठीक है, सो ग्राफाइट इज़ अनअफेक्टेड बाय Br2 गैस, दैट इज ऐसा मैंने लिखा है वहाँ पे. सो ग्राफाइट इज़ अनअफेक्टेड बाय द ब्रोमीन वेपर्स. ठीक है, ईजी. यहाँ पे इलेक्ट्रोड क्या लिया था? Br2. ओवरऑल रिएक्शन, अभी ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी? Pb-Br2 डिसोसिएट्स इनटू, या फिर ये वो यील्ड का साइन होता है ना, एरो एरो एरो, हाँ नॉर्मल एरो, डिसोसिएट्स इनटू Pb+2 एंड Br माइनस. ठीक है, या फिर यू आर गोइंग टू राइट लाइक Pb that is solid plus Br2 that is gas. These are two steps in which the reaction took place, but in detail cathode पे क्या हुआ? Pb was +2, it gains 2 electrons and converts into Pb. At anode Br minus, it loses an electron and converts into Br. फिर Br they react and they form Br2 plus, that is the bromine vapors, and they are going to get evolved at the anode. ठीक है, this is the ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे? कैथोड पे क्या हो रहा है? सिल्वरी ग्रे मेटल इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड and dark reddish brown fumes of bromine are formed at the anode, or all
आर इवॉल्व एट द एनोड, ठीक है, प्रॉपर वर्ड विल बी dark reddish brown fumes are evolved at the anode, ठीक है, and electrolytes uses the graphite ones because they are inert in nature and they are unaffected by the bromine vapors. easy, खत्म, एक क्वेश्चन खत्म PBBR2 का, जो कुछ भी पूछेगा खत्म हो गया. देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर. इसमें सारे मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस विल बी कवर्ड, ठीक है. तो यस, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर. Now next one is electrolysis of acidified water. So here we have to note two things. यहाँ पे water है और दूसरी बात acidified है. Acidified मतलब यहाँ पे हमने we have added traces. Okay, we have added traces of some acid. Okay, we have added traces of some acid. Why? Because we need to increase the electrical conductivity of that electrolyte. Here electrolyte in this case we have taken water. वाटर लिया है हमने, वाटर तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था, लेकिन अभी ये वाटर डिस्टिल्ड वाटर नहीं है, इट इज़ एन एसिडिफाइड वाटर, ठीक है. एसिडिफाइड वाटर मतलब उसमें हमने कुछ अमाउंट में वी हैव एडेड सम डाइल्यूट एसिड विच इज इन दिस केस H2SO4. इट इज H2SO4 इन डाइल्यूटेड कंडीशन. तो व्हाई वी हैव एडेड दिस, यू हैव टू राइट जस्ट दिस टू वर्ड्स विच इज इंक्रीज कंडक्शन, increase conduction of water, increase conduction of electrolyte, anything, ठीक है. these are the keywords, ठीक है. increase conduction. why we are adding traces of H2SO4 to acidified water in case of electrolysis or while doing electrolysis, whatever can be asked. so you have to write dilute H2SO4, traces of dilute H2SO4 are added to increase conduction. And why H2SO4 only? Why H2SO4? Why cannot we add HNO3 or HCl? Because we know the most famous property of H2SO4, that is it's a non-volatile acid. Why? Because it's non-volatile, yeah. So that's why it is preferred. Because if you use volatile acid, it's going to get volatilized out and it will be not of any use. So though you add water or whatever, so it is not going to be of any use. So that's why non-volatile acid is preferred. So it is going to get very, dissolved in a very good kind of manner. And yes, it will also increase the conduction, and H2SO4 is more stronger as well. It's the strongest acid, right? ऐसे नहीं है, HNO3 भी है, बट इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग वाला एसिड. ओके, कोरोसिव वगैरह ऐसा चीज़ें वो ज़्यादा माहिर है, एंड H2SO4 इज नॉट दैट केस. सो H2SO4 इज गुड एसिड एंड इट्स अ नॉन वोलेटाइल एसिड, सो इट इज़ प्रेफर्ड एंड इट इंक्रीजेज द कंडक्शन. बस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर में, तो इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइट में वी हैव H2O प्लस H2SO4 डाइल्यूटेड कंडीशन में. लेकिन व्हाट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज, जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस की जो रिएक्शंस देंगे, दैट इज एट द कैथोड और एट द एनोड और इन द ओवरऑल रिएक्शन, तो यहाँ पे वी विल नॉट इंक्लूड एनीथिंग अबाउट H2SO4. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. H2SO4 का कुछ लिखेंगे नहीं. ऐसा नहीं है कि H2SO4 उसमें डाला है, रीज़न में पूछा है तो ऑफकोर्स इसमें भी होगा, मतलब कैथोड पे एनोड पे दिखेगा वो H2SO4. नहीं, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड SO4 आयॉन्स, या फिर आपको H+H2 आयॉन्स मिलेंगे, वो वाटर के हो गए ना. ये H2O4 जो आयन्स है, स्पेशली जो H2SO4 के जो हो गए, वो चीज़ें नहीं मिलेगी. यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड द आयॉन्स ऑफ H2SO4 एनीवेयर, बिकॉज ये जस्ट एक एज अ कैटलिस्ट यूज किया है इस पूरी रिएक्शन में. इट इज़ यूज एज अ कैटलिस्ट, ओके, टू सॉर्ट ऑफ इंक्रीज द कंडक्शन इन दिस केस. सो दैट्स वाई. तो प्रॉपर जो होगा ना कैथोड पे या फिर एनोड पे, माइग्रेशन हो चाहे डिस्चार्ज हो, वो सब H2O का होगा, ठीक है. सो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स कौन सी यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स, दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड्स फॉर बोथ anode as well as the cathode. So these are inert platinum electrodes as the anode and as the cathode as well, ठीक है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में है हमारे पास H2O plus dilute H2SO4, but H2SO4 is not going to show up in anywhere or in the any reaction of cathode or anode or whole ionization का reaction, ठीक है. We are not going to see H2SO4, we are not going to take it into consideration because it is going to act as a catalyst to increase the conduction, ठीक है. खत्म, बस कैटालिसिस. अभी हाँ, एक मिनट, हाँ, ये जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, इसको क्या कहते हैं, कैटालाइसिस की रिएक्शन कहते हैं. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, एसिडिफाइड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ कैटालाइसिस रिएक्शन. व्हाई कैटालाइसिस रिएक्शन, सेम केस जो मैंने अभी तक इतना बार रिपीट किया है, दैट इज H2SO4 वी आर एडिंग टू इंक्रीज द कंडक्शन, तो इसीलिए यहाँ पे कैटालाइसिस रिएक्शन इसको कहते हैं. इजी. अभी आयोनाइजेशन का इसका जो रिएक्शन है, इट इज समथिंग लाइक दिस. H2O कन्वर्ट्स इनटू, एरो के ऊपर लिखना है SO4, ठीक है.
अभी देखो यहाँ पे वो केस आ गई है कि यहाँ पे माइग्रेशन और डिस्चार्ज के दो डिफरेंसेस हमें यहाँ पे दिखने वाले। तो H2O जो है इट इज़ गोइंग टू गेट सेपरेटेड और स्प्लिट इनटू H प्लस एंड OH माइनस आयॉन्स, इजी। और हमें क्या मिलने वाला है, H2SO4 का भी होगा, क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा ना, इजी, क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज़ अ कंपाउंड ना, ऐसा नहीं है रिएक्शन में इंक्लूड नहीं कर रहे तो फिर वो स्प्लिट नहीं होगा, होगा ऑफकोर्स होगा, क्योंकि वहाँ पे आफ्टर ऑल हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। सो H2SO4 का क्या होगा, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस, SO4 2 माइनस, सो वी आर गोइंग टू गेट H प्लस आयॉन्स एंड SO4 माइनस आयॉन्स। अभी यहाँ पे इन दिस केस both are going to migrate at the anode, but only OH minus is going to get discharged, but OH minus only gets discharged. This is very important. Both are going to migrate at the anode, but OH minus is only going to get discharged. मतलब एनोड के पास दोनों जाएंगे। अभी एनोड के पास ऑफकोर्स मैं बात किसकी कर रही हूँ, निगेटिव वालों की ना, तो OH माइनस और SO4 माइनस दोनों जाएंगे दोनों भी जाएंगे, मतलब माइग्रेट करेंगे। So they are going to migrate at the anode, but discharge कौन होगा, discharge is going to be of OH minus, ठीक है। SO4 वैसे ही रहेगा, it is just going to migrate and just be there as it is, वो discharge नहीं करेगा। SO4 is not going to get discharged. Why? Because of selective discharge of OH ion, because of preferential discharge या फिर selective discharge of ions, ठीक है। अभी क्या होता है यहाँ पे, selective discharge हो रहा है यहाँ पे, OH जो है अभी ये किस बेसिस पे होता है, OH जो है इट लाइज बिलो द SO4, ओके, OH लाइज बिलो SO4 इन द प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज सीरीज, ठीक है। सिलेक्टिव डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे बिकॉज OH जो है इट लाइज बिलो द SO4 in the preferential discharge series or the reactivity series of non-metals, of anions, ठीक है। So yes, selective discharge हो रहा है यहाँ पे, OH lies below SO4, खत्म। यू हैव टू यूज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, यू हैव टू यूज सिलेक्टिव डिस्चार्ज, और OH लाइज बिलो SO4, ये सारे कीवर्ड्स हैं। यू हैव टू यूज दिस एंड यू हैव टू टेल दैट बोथ माइग्रेट एट द एनोड बट ओनली OH माइनस इज गोइंग टू गेट डिस्चार्ज, ठीक है। बोथ both anions are going to migrate at the anode, but only OH minus are going to get discharged because of selective discharge of OH minus ions, because they lie below SO4 in the series, ओके, दिस इज नोन एज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, खत्म। फिर अभी दूसरा केस, कैटायंस की बात करें तो H प्लस एंड H प्लस, दोनों H प्लस है, इजी, दोनों है, दोनों जाके डिस्चार्ज कर देंगे, नो मैटर वो H2SO4 से निकला या नो मैटर वो वाटर से निकला, लेकिन ये दोनों अभी H है तो वो जाके दे आर गोइंग टू डिस्चार्ज, दे आर गोइंग टू माइग्रेट एट द कैथोड एंड दे आर गोइंग टू डिस्चार्ज एज वेल, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे इट विल बी H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अभी देखो H प्लस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, Cr, रिडक्शन मतलब लेना, तो कैथोड पे हाइड्रोजन विल टेक वन इलेक्ट्रॉन, इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस था, प्लस इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, देन हाइड्रोजन क्या होगा, H2 बनेगा, ऐसे एक ही हाइड्रोजन थोड़ी होगा, हाइड्रोजन फिर दे विल रिएक्ट एंड फॉर्म द हाइड्रोजन गैस, दैट इज H2 गैस, फिर वो इट इज गोइंग टू गेट इवॉल्व एट दी कैथोड, हाइड्रोजन विल बी इवॉल्व एट दी कैथोड, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व एट दी कैथोड। ऐसा नहीं है कि पिछली बार गैस एनोड पे आया था तो फिर यहाँ पे इस बार भी इट विल बी एट द एनोड, नो, इट इज गोइंग टू बी एट कैथोड, हाइड्रोजन गैस इज गोइंग टू बी गेट इवॉल्व एट दी कैथोड, ठीक है। अभी एनोड पे क्या होगा, एनोड पे इट विल बी OH माइनस आयॉन्स जो है दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द एनोड, हमने देखा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज हुआ तो एनोड के पास जाएंगे वो OH माइनस, इट इज गोइंग टू बी, एनोड पे क्या होता है, लूज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो OH माइनस इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज गोइंग टू गेट कन्वर्ट इनटू OH, सिर्फ OH बनेगा। अभी OH प्लस OH क्या बनता है, H2O प्लस O, देखो याद रखो, OH प्लस OH क्या बनेगा, H2O प्लस O, H2O भी बनेगा और O भी बनेगा। अभी क्या होगा, O ऐसा तो मतलब OH जो है वो सिर्फ एक ही तो नहीं होगा, ऑफकोर्स नहीं होगा, तो क्या होगा, OH ऐसे बहुत सारे OH आके कंबाइन करेंगे, वाटर बनाएंगे और ऑक्सीजन बनेंगे साइड को, दैट इज O बनाएंगे, तो फिर H2O वी हैव, O वी हैव, सो यहाँ पे होगा क्या, O प्लस O वी आर गोइंग टू गेट O2, सो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं एनोड पे, दैट इज वाटर, अगर पूछा ना ऑब्जर्वेशन में, वाटर लिखना अच्छी बात नहीं है, मतलब इतना कुछ नहीं उसमें खास, ठीक है। खास बात क्या है कि ऑक्सीजन बन रहा है, तो O प्लस O वी आर गोइंग टू गेट ऑक्सीजन गैस एट द एनोड, तो ऑक्सीजन गेट्स इवॉल्व एट द एनोड। अगर ऑब्जर्वेशन पूछा तो व्हाट यू विल राइट, ओनली ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन का ही लिखोगे कि ऑक्सीजन गेट्स इवॉल्व एट द एनोड एंड
hydrogen is evolved at the cathode. So observations are at the cathode H2 is evolved, at the anode O2 is evolved. ठीक है, O2 कैसा आता है, OH माइनस जो है it is going to lose electrons, it is going to convert into OH, then OH plus OH you are going to get H2O plus O, and O plus O you are going to get O2. ठीक है, that's how it works. अभी है हमारे पास थर्ड केस, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट. यहाँ पे 2 बार हुई है कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, 2 केसेस है. लेट्स सी. सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, दैट इज लास्ट केस ही है इलेक्ट्रोलाइसिस का. तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, यहाँ पे इलेक्ट्रोड वी आर यूजिंग अगेन प्लैटिनम. वी आर यूजिंग प्लैटिनम 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 इलेक्ट्रोड विच इज इनर्ट. अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है CuSO4 ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका ये तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा है. सो CuSO4 इज गोइंग टू बी इन एक्वस स्टेट. ठीक है, आयोनाइजेशन यहाँ पे क्या होगा, CuSO4 विल ऑफ कोर्स कन्वर्ट इनटू Cu प्लस एंड SO4 माइनस, SO4 माइनस सॉरी, देन H2O क्या होगा, H प्लस एंड OH माइनस. ठीक है, इजी, खत्म. Cu प्लस 2 SO4 माइनस 2. ठीक है, अभी कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Cu क्या करेगा, Cu जो है इट इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इट इज गोइंग टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू Cu. इजी, खत्म. Cu बन गया. Cu क्या होता है, मेटल सॉलिड. Cu कॉपर है, कॉपर क्या होगा, सॉलिड होगा ऑफ कोर्स, तो इट इज गोइंग टू बी अ मेटेलिक सॉलिड एंड इट इज गोइंग टू गेट डिस्चार्ज. तो लिखेंगे कैसे, अ मेटेलिक सॉलिड, अ मेटल सॉलिड is discharged at the cathode. Okay, a brown metal solid is discharged at the cathode, that is copper. ठीक है, ब्राउनिश पिंक कहते हैं उसको. कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्राउनिश पिंक. सो ब्राउनिश पिंक मेटल सॉलिड इज डिस्चार्ज्ड एट द कैथोड. ठीक है, दिस हैव यू राइटेड. अभी एनोड पे क्या होगा, OH माइनस आयॉन्स वहाँ पे एनोड पे आएंगे, दे आर गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर देंगे और OH बना देंगे. OH प्लस OH अगेन H2O बनेगा प्लस O बनेगा एंड यू आर गोइंग टू गेट O प्लस O, दैट इज O2 गैस अगेन इज फॉर्म्ड एट द एनोड. ठीक है, इजी. तो यहाँ पे एक रीज़न आता है, इफ़ प्लैटिनम एनोड इज़ यूज्ड. अभी क्या होगा, यहाँ पे अभी हम कौन सी यूज इलेक्ट्रोड किया, हमने प्लैटिनम यूज़ किया ना. हाँ, तो इफ़ प्लैटिनम एनोड इज़ यूज्ड, ब्लू कलर ऑफ CuSO4 इज गोइंग टू फेड. ठीक है, CuSO4 का कलर कौन सा होता है, ब्लू. तो व्हेन वी यूज प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, जस्ट रिमेंबर दिस, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड व्हेन वी यूज स्पेशली द एनोड जो हम प्लैटिनम का यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो ब्लू कलर होता है ना CuSO4 का, इट इज़ गोइंग टू फेड अवे बिकॉज ब्लू Cu प्लस आयॉन्स जो होते हैं. ब्लू कलर किसका होता है, Cu प्लस आयॉन्स का ना, पानी का तो नहीं होता. सी इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग, पानी का नहीं होता, पानी इज ट्रांसपेरेंट. सो ब्लू कलर में Cu की बात करी हूँ, कॉपर का आयॉन्स जो होते हैं, ब्लू कॉपर आयॉन्स. सो ब्लू कॉपर आयॉन्स विच आर डिस्चार्ज एट द कैथोड आर नॉट रिप्लेस्ड एट द एनोड. दिस इज वॉट यू हैव टू राइट, ब्लू कॉपर प्लस आयॉन्स. Blue copper ions are which are discharged at the anode, which are discharged at the cathode are not replaced at the anode. मतलब ये जो बन रहा है सॉलिड, कैथोड पे जाके कॉपर मेटल सॉलिड बन रहा है, दे आर गेटिंग डिस्चार्ज ओनली, लेकिन रिप्लेस नहीं हो रहा है एनोड से. ऐसा नहीं है कि एनोड से निकलते जा रहे हैं कॉपर आयॉन्स, फिर वो ब्लू कलर रहेगा वैसे का वैसा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि एनोड जो है वो खुद एक इनर्ट है. तो इलेक्ट्रोड जो है वो प्लैटिनम का है, क्योंकि हमारा कॉपर का तो नहीं है. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट गेटिंग रिप्लेस्ड. सो ब्लू कलर ऑफ कॉपर आयॉन्स विच आर डिस्चार्ज एट कैथोड आर नॉट रिप्लेस्ड एट द एनोड. ब्लू कॉपर आयॉन्स विच आर डिस्चार्ज एट द कैथोड आर नॉट रिप्लेस्ड एट द एनोड. ठीक है, ब्लू कॉपर आयॉन्स विच आर डिस्चार्ज एट द कैथोड आर नॉट रिप्लेस्ड एट द एनोड. ठीक है, सो प्लैटिनम एनोड यूज्ड, तो क्या होगा, blue color of CuSO4 is going to fade. If they ask reason, you have to write blue copper ions which are discharged at the cathode are not replaced at the anode. खत्म. अभी दूसरा केस है, ये क्यों बता रही थी, अभी देखो दूसरा केस है, मतलब फोर्थ केस, दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट. अभी तो देखा, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स. अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द इलेक्ट्रोड्स ऑफ कॉपर. कॉपर के हम इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं. अभी हमने कौन से यूज किए थे इलेक्ट्रोड्स, दे वर ऑफ प्लैटिनम, दे वर इनर्ट. नाउ वी आर यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड्स. एक्टिव इलेक्ट्रोड वाला एक रिएक्शन अगर पूछा, तो यू आर गोइंग टू राइट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट इज कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोड्स कौन से, कॉपर के, मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हम यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी CuSO4 क्या होगा, Cu प्लस Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, और H2O का क्या होगा, H प्लस एंड OH माइनस. आयॉन्स प्रेजेंट अभी पूरे इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो गए, Cu प्लस 2 H प्लस 1 SO4 माइनस 2 OH माइनस 2, सॉरी OH माइनस. फिर ये सारे आयॉन्स है.
अभी क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, लेट्स सी द रिएक्शन. Cu2 प्लस एज ऑलवेज इट इज गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है. रिडक्शन क्या होता है, गेन होता है. ठीक है, ऑयल रहेगी, याद रखो. तो Cu+2 इट इज गोइंग टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट इनटू Cu. ठीक है, ये क्या है, मेटल है. कौन सा मेटल, कैसे लिखोगे, ऑब्जर्वेशन, ब्राउनिश पिंक मेटल, फॉर्म्ड और डिपॉजिटेड, कुछ भी लिखो, फॉर्म्ड या फिर डिपॉजिटेड. ब्राउनिश पिंक मेटल इज गेटिंग डिपॉजिटेड एट दी कैथोड. ठीक है, विच इज ऑफ कॉपर. अभी ये डिस्चार्ज हो जाते हैं क्योंकि ये क्या है, अब हाँ एक मिनट, यहाँ पे H+ भी था ना, H+ भी था हमारे पास पॉजिटिव में. देखो आयॉन्स प्रेजेंट कौन से थे, Cu+, H+, SO2-, OH-. तो यहाँ पे डिस्चार्ज कौन होगा, कॉपर होगा. क्यों, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, जो नीचे होते हैं वो ज़्यादा पहले जाके डिस्चार्ज कर लेते हैं. वी नो दैट सीरीज ना, कह दो ना, कार मिलेगी, अल्टोज एंड फरारी, पब्लिक क्यूरिस होगी, सिल्वर ऑडी, दैट इज KNA, ऐसा करके पूरा रिएक्टिविटी सीरीज है. तो इन दैट केस वहाँ पे कॉपर इज बिलो हाइड्रोजन. सो कॉपर बिलो हाइड्रोजन है, देयरफॉर कॉपर इज गोइंग टू गेट डिस्चार्ज एट द कैथोड. हाइड्रोजन वैसे ही रहेगा. ठीक है, तो कॉपर गेट्स डिस्चार्ज एट द एनोड कैथोड बिकॉज इट इज बिलो हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वट एवर यू कॉल इट. ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा, कॉपर डिस्चार्ज बन जाएगा, हो जाएगा. ठीक है, तो ब्राउनिश पिंक मेटल इज गोइंग टू गेट फॉर्म्ड और डिपॉजिटेड एट द कैथोड. और एनोड पे क्या होगा, एनऑक्स, रिमेंबर एनऑक्स. ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, ऑयल रिग. फिर से तो ऑक्स मतलब क्या, ऑयल रिग. ठीक है, ऑक्सीडेशन इज लॉस. तो क्या होगा, कॉपर इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर इज गोइंग टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म Cu2+. Cu2+ बनेगा. ये क्या होगा, अभी Cu2+ आयॉन्स बन गए हमारे पास. ये अभी जाएंगे, दे आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स द कैथोड एंड दे आर गोइंग टू गेट रिलीज्ड, सॉरी दे आर गोइंग टू गेट डिपॉजिटेड एट द कैथोड, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है एक्टिव इलेक्ट्रोड. ठीक है, अभी लेकिन ये जो SO4 2- था और OH- था, ये दोनों भी नहीं आए, ये दोनों भी नहीं आए, क्योंकि ये दोनों भी क्या थे, दे वर ऑल नेगेटिव, दे वर सपोज टू गो एट द एनोड एंड दे वर सपोज टू गेट डिस्चार्ज ओवर देयर. बट ये दोनों भी माइग्रेट तो कर दिए, बट दे माइग्रेटेड एट द एनोड, बट नीदर ऑफ देम डिस्चार्ज. वाई, बिकॉज वी वर यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड ऑल द टाइम. वी यूज्ड एक्टिव इलेक्ट्रोड इन दिस केस विच वॉज ऑफ कॉपर इटसेल्फ. ठीक है, we use active electrode, so that's why these ions, they didn't got chance to get deposited. But we will not write like this. We are going to write कि neither of them discharged because we had used active electrode. ठीक है, also it was due to the preferential discharge as well. ठीक है, और preferential discharge इस केस में नहीं काम करेगा because both are metals of course. और ये तो preferential discharge in case of एक एक का reactivity series होता है, मतलब नॉन मेटल्स का अलग और मेटल्स का अलग. तो यहाँ पे वो तो नहीं चलेगा, कॉपर है ना, क्योंकि दोनों केस में कैथोड पे भी कॉपर है, एनोड पे भी कॉपर है. लेकिन तो यस, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कॉपर ने ना 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए और कैथोड पे ना कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए. समझ रहे हो, कॉपर ने नहीं किए, कॉपर के आयन ने किए. वो अजीब लगता है लेकिन यस. सो कॉपर Cu2+ ions, they gained 2 electrons at the cathode and they formed Cu metal that was brownish pink. It was deposited and it was discharged because copper is below hydrogen. Anode पे क्या हुआ, Cu- 2 electrons, मतलब copper ने 2 electrons lose किया and it formed Cu2+ because this was the active electrode. ठीक है, especially anode. अभी यहाँ पे SO4 2- and OH- they migrate towards the anode but neither of them get discharged because of active electrode used. ठीक है, और इनको क्या बोलेंगे हम, इसको स्पेशल नाम है SO4 2- एंड OH- आयन्स को, दे आर नोन एज स्पेक्टेटर आयन्स. दीज आर नोन एज स्पेक्टेटर आयन्स. ठीक है, अभी याद रखना स्पेक्टेटर आयन्स क्वेश्चन आता है. तो ब्लू कलर ऑफ CuSO4 इज अनचेंज्ड इन दिस केस, क्योंकि हम कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई ब्लू कलर ऑफ CuSO4 इज गोइंग टू रिमेन अनचेंज्ड. वाई, बिकॉज वी आर यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स. अभी कैसे, because for every Cu+ discharged at the cathode, डिस्चार्ज हो रहा है ना कैथोड पे जाके, मेटल फॉर्म हो रहा है ब्राउनिश पिंक, याद है, डिपॉजिटेड इतने बार बोला. तो फॉर एवरी Cu2+ ion getting discharged at the cathode as neutral atom, a Cu2+ ion is added. A Cu2+ ion is added to the solution at the anode. A Cu2+ ion is added to the solution at the anode. Now यहाँ पे that's why the total number of कॉपर आयॉन्स दैट इज Cu2+ आयॉन्स जो कलर देते हैं ब्लू कलर इलेक्ट्रोलाइट को, सो द टोटल नंबर ऑफ दीज आयॉन्स Cu2+ आयॉन्स remains the same, so color does not fade, the color of Cu2+ does not fade, so total number of Cu2+ remains the same.
एंड यहाँ पे और एक चीज़ ये नोट करनी है कि ये जो ब्लू कलर है ना वो कॉपर के Cu आयॉन्स का है, Cu2+ आयॉन्स की वजह से है। तो मैं क्या कह रही थी, एक मिनट, ये पॉइंट हो गया, ब्लू कलर इज ड्यू टू Cu2+ आयॉन्स। फिर क्या है, एनोड। एनोड का क्या होता है, डिमिनिशेस इन मास। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन डिमिनिशन मास हो जाता है यहाँ पे, एनोड डिमिनिशेस इन मास। क्यों, एनोड कॉपर से बना है, ऐसा नहीं है ये कैथोड भी कॉपर से ही बना है, बट मतलब इट कैन बी बिकॉज, लेकिन एनोड कंपल्सरी कॉपर का होना चाहिए इफ़ यू आर यूजिंग दिस नो, इफ़ यू वांट टू यूज एक्टिव इलेक्ट्रोड तो एनोड को पक्का ही तुम एक्टिव रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एनोड क्या होता है, डिमिनिशेस इन मास। क्यों, क्योंकि वो उसके कॉपर के आयॉन्स देते जा रहे हैं एंड दे आर गोइंग डिपॉजिटिंग एट द कैथोड, ठीक है। तो एनोड इज गोइंग टू डिमिनिश इन मास, ठीक है। लॉस इन मास is going to be seen at the anode because Cu2 minus Cu ions are going to lose 2 electrons and they are going to form Cu2+ ions which are cations, and then they are going to as discharge the products and they are going to migrate towards the cathode. तो एक मिनट, अगर हमें प्रोडक्ट्स पूछे इस पूरी रिएक्शन में तो यू हैव टू राइट जस्ट वन थिंग कि एनोड पे नील, मतलब एनोड पे कुछ नहीं हुआ। एनोड पे मतलब लाइक प्रोडक्ट्स कुछ नहीं है, प्रोडक्ट्स बने नहीं, कुछ नहीं हुआ, मतलब बहुत कुछ हुआ वहाँ पे, लेकिन यस प्रोडक्ट कुछ नहीं बने क्योंकि ऑल द Cu+ ions which were formed they got discharged at the cathode, they had migrated over there, they got discharged over cathode, ठीक है, इजी। और बना क्या फिर, प्रोडक्ट क्या बने, ओनली यू हैव टू राइट दिस कि कैथोड पे ना ब्राउनिश पिंक मेटल हैज़ बीन फॉर्म्ड, whereas at the anode the products are nil because the Cu+ ions which were formed they got discharged at the cathode itself, ठीक है। this is over now, खत्म। तो ये थे 4 इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइसिस के रिएक्शंस। थैंक यू।